June 14, 2020, a day that shook the entire nation. A shining star who made his own place in Bollywood suddenly left us forever. We are talking about Sushant Singh Rajput. From Patna to Mumbai, his journey was nothing short of inspiration. He started with the TV serial Pavitra Rishta and went on to give us unforgettable films like Kai Poche, MS Dhoni, The Untold Story, Chore. Sushant was not just an actor, he was a dancer, dreamer, true genius. He had a deep passion for astronomy, technology, and space science. But on 14 June 2020, when the news broke that Sushant was found hanging in his Bandra apartment, it was impossible to believe. His death raised endless questions about depression, Bollywood nepotism, politics, and even the underworld. The CBI, ED, NCB all investigated the case. But till today, the truth remains unclear. Was it a suicide or a murder, according to you? After Sushant's death, the entire country was filled with grief and anger. Justice for Sushant became one of the biggest global social media movements. People believed Sushant was not just an actor, but a symbol of millions of dreams. Though Sushant is no longer with us, his work and his smile live on forever. He taught us that no matter how tough life gets, dare to dream big and work hard for it. Sushant Singh Rajput will always be remembered. What do you think? Will the real truth about Sushant's death ever come out? Share your thoughts in the comment below. Let's see what was people's opinion when Sushant died. Let's check out the Bollywood, how they reacted when they got to know about Sushant's death. You can see from this video how humble he is. He's taking photos with everyone, videos with everyone without complaining. मारा जाना, क्या सुशांत के सपने मर रहे थे या फिर मार दिए जा रहे थे? आखिर ऐसा क्या था कि सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन में थे? बॉलीवुड के कुछ लोगों ने सुशांत के लिए जो लिखा, वो आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है कंगना रनौत ने. Let's see how various celebrities reacted to Sushant's death. How they gave condolences to the family. What was their reaction? And comment me below that what was your reaction when you got to know that Sushant Singh Rajput is no more. I'll tell you my reaction when I firstly got to know that Sushant Singh Rajput is no more. I saw it in the TV and I was like, it must be a fake news or something. But then when I checked it on real news channels, then I got to know that it's not fake, it's a true news. It was really heartbreaking for all the Indians and the Bollywood fans, and of course SSR fan. So what was your reaction? Comment me below. Can you name the celebrity who have not commented about Sushant's death? If you can guess some names, so comment down that also. And what do you think? Who was the real one who tried to kill Sushant, or Sushant death was a murder or a suicide? What's according to you? Almost the entire Bollywood reacted, but I find that Kangana and Akshay Kumar, then Anupam Kher, they were the people who made videos on that also. Let's check out who were the people who came to Sushant Singh Rajput funeral. As you can see, you can spot some peoples like Riya Chakrabarti, Shraddha Kapoor, then Kriti Senan. They were the people who came to Sushant Singh Rajput death. Then I can also spot Rajkumar Rao. They were the people who came at the funeral. If I missed out someone, so please comment that also. And who
कला को निखारने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि इससे क्या हो सकता है। तो उनको बहुत ऑफर्स आने लगे। ये बात मैं बाद में करूंगी कि वो नहीं चाहते थे, फिर हमने क्या बातें करी और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन करा। उसके प्रखर पे थे वो, बिल्कुल ही ऊंचे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर ही वॉज। एंड बिकॉज जब उनको उनसे जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, जब उनको उससे वो कहते हैं ना कलाकार को वो सुख नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहां पे भी लोगों का वर्चस्व था, वो नहीं चाहते थे कि वो छोड़े, तो उनको वहां पे भी रोका गया। लेकिन उन्होंने छोड़ के एक फिल्म करी। वहां पे वो इतने ज्यादा लोगों के इतने करीब हो गए, लोकप्रिय हो गए। तो ये भी चला, तो इंडस्ट्री ने भी उनको देखा कि अच्छा कोई अलग सा आया है और वो कुछ कर रहा है और अच्छा कर रहा है। लेकिन 2016 में जब सुशांत, I will tell the whole world, I want to tell it to everybody who's connected to Sushant, कि it was his idea कि एक बायोपिक उस पे बनाए जो आज भी वो काम कर रहा हो जो आप जानते हैं, MS धोनी। वो आज भी क्रिकेट खेल रहे थे। बायोपिक उन पे बनती है जो कुछ अपनी मुकाम, अपने जो भी उनका फील्ड होता है, सुपरहिट मूवी थी एग्जैक्ट वो नहीं, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन वो मुकाम को वो जब अचीव कर लेते हैं अपने फील्ड में, तब उन पे बायोपिक बनती है। सुशांत वाज द फर्स्ट वन हु थॉट कि whoever is in harness, whoever is doing the is still performing in that field, उस पे बायोपिक बनाए। तो वो उनकी सोच थी, उनका आइडिया था। Whoever is trying to take the credit, I tell you, it was Sushant's idea to make a biopic on MS Dhoni. इतना सक्सेसफुल एक्टर औकात में आएगा कि यहां तक पहुंच गए आप लोग कि आज बोल रहे हो बोर्ड ड्रगी है। जिस केस की हम बात कर रहे हैं, केस नंबर 16, जो कि RC रिया चक्रवर्ती के चैट से बाहर आया ईडी के इंक्वायरी में, तो उसके बाद ये बात आई कि कैसे द केस वॉज एंड इज स्टिल कि कैसे ये 35 accused were part of the syndicate who was selling drugs to high and mighty high society in Bollywood. पर कोई हाई सोसाइटी बॉलीवुड की तो बात कर ही नहीं। Yes, please bear with me. तो आप वहां से शुरू करते हो और आज जब आप इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करते हो, और बाय द वे let it be very clear, charge sheet was filed 3rd March if I'm not wrong, but in March 2021, and this is the procedure. FIR होता है अगर कोई ऑफेंस हुआ जो आपके संदर्भ में, आपके नॉलेज में आता है, तो आप FIR करते हो। आप उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। वो FIR में जो धाराएं लगती हैं या सेक्शन लगता है, it's not limited to that. I and you may see somebody being just की जानकारी कैसे मिली रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी, और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर नाउ। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं। तो कहाँ हो तुम? तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विद इन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। यू ब्रोक डाउन? राइट। व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट? आप उनके घर गई? कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। आई ब्रोक डाउन, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था। और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है, और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। बट इफ यू लव सुशांत सो मच, व्हाई डिडंट यू रीच आउट टू द फैमिली? परिवार, अगर आप सुशांत से इतना प्यार करती थी, उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी, परिवार को साथ देने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की कोशिश।
जब नवंबर में वो वाटरस्टोन क्लब आए थे सुशांत को मिलने, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आई डिडंट नो द अदर सिस्टर्स। अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है। जिस वक्त वो लोग आए नवंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है, मीतू जी। और जब उनकी बहनें आई, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर छुए मिलते ही। मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटरस्टोन में कि जाने दो, जो भी हुआ, अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं यही तो सोच रही हूँ, 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं, आ जाओ आ जाओ। आप क्यों नहीं आए? अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो क्यों छोड़ के गई है उन्हें उसे वाटरस्टोन में? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके कि आप निकलिए यहां से? नहीं ना। तो क्यों गए वो? जब वो चंडीगढ़ गया, क्यों नहीं रोका उसे? रिटन कंप्लेंट क्यों नहीं दी? जब बॉम्बे आए, उसके साथ कैफे में बैठ के हंस के खाना खाने के बजाय आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी? तो आप कह रही है न केवल आपके रिश्ते सुशांत के फैमिली में बिगड़ गए थे, कहीं सुशांत के भी रिश्ते अपने फैमिली से बिगड़ गए थे, क्योंकि हमारे सामने इतने वीडियोस हैं जहां सब फैमिली एक साथ है, वो अपने बहनों के साथ है, लग रहा है बड़ा नॉर्मल लग रहा है, और सुशांत लुक्स लाइक ही इज हैप्पी, खुश नजर आ रहा है अपने परिवार के साथ। आज आप मुझे कह रही है कि वो रिलेशनशिप उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी लोगों को लगती है। वो वीडियोस देखकर तो हमें सब लगता है कि नॉर्मल रिलेशनशिप। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच कब? आखिर दिशा सालियान को इंसाफ कब मिलेगा? दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री क्या है? और 8 जून की रात दिशा सालियान की पार्टी में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका हर एक सबूत न्यूज नेशन के पास इस वक्त मौजूद है। दिशा की पार्टी के चश्मदीद का एक ऑडियो वीडियो बयान न्यूज नेशन के पास मौजूद है, जिसे न्यूज नेशन ने बाकायदा सीबीआई को सौंप दिया है, जिसके बाद अब पूरा देश कह रहा है सबूत मिल गया, अब जांच करो, दिशा को इंसाफ दो। सबूत भी सामने है, गवाही भी बेबाक है। चश्मदीद का 100% बयान। के ऊपर रेप किया है, उसको बिल्डिंग से फेंका है। अब तो जांच करो, दिशा के साथ इंसाफ करो। दिशा सालियान की मौत के मामले में न्यूज नेशन से चश्मदीद ने जो बात की, उस खुलासे के बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया। दिशा सालियान को इंसाफ मिले, इसके लिए न्यूज नेशन ने एक जिम्मेदार चैनल की भूमिका अदा की। न्यूज नेशन ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए?
तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history। We will decide that। प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, मेरा पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है, जिस दिन इस नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बचपन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप लोगों से झूठ नहीं कहूँगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था। रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है यार। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांति से कहा, देखो बेटा, तुम करना क्या चाहते हो, ये बताओ मुझे, बताओ करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, पापा मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नेशनल अवार्ड कभी मेरे हाथ पे होता। ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वजह से सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक IIT के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं। ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो? इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दांव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देके मत जाओ। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहाँ गए वो जमाना, कहाँ गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव बेटा, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है। अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं।
किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी। एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ था कि अगर दिल